آج انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہو گیا، رشوت لے رہا ہے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ اکبر، آپ زندگی کا جائزہ لیتے چلے جائیں، اللہ عز و جل کا خوف دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر شرافت نام کی چیز نہیں رہتی۔ ایک انسان شریف اس وقت کہلاتا ہے جب اس کی زندگی اللہ کی خشیت میں گزرتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کا مال نہیں کھائے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا غیبت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا چغلی نہیں کرے گا۔ اور جب یہ ساری برائیاں وہ نہیں کرے گا تو میرے کریم نے فرمایا میرے بندے غم نہ کر، تو میری بات مانتا ہے، میں تیری محبتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے پاس محل نہیں ہوا کرتے تھے، عالیشان کاریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف میں گرفتار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر دیا۔ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سکون سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی زیادتی کی، کوئی غلط کام کیا، تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ سکون کی دولت اور نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قرآن کے ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اور نیکیوں کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نکل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہوں گا کہ آج اپنی سوچ کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، اپنی فکر کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھو، تاکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے، بلکہ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں رسول اعظم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میں نے جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اسے سنو۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ذرا غور سے سنو، بہت کچھ کر چکے آج تک، رات کے سناٹے کے اندر یا دن کے اجالے کے اندر، کاروبار کی منڈی میں ہو یا ملازمت کے اندر ہو، بہت کچھ کر چکے آج تک۔ اب اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ عز و جل کی کتاب تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے دل کے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اس آیت کا شان نزول سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اپنے دولت کدے کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت کدہ حجرہ مبارک یہ مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔
अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, शान मुबारक पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर शॉल थी, चादर थी। सरकार उठे, वो चादर जमीन पर घसीटी जा रही थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में मस्जिद की तरफ बढ़े। क्या देखा मस्जिद नबी में जाकर? तवज्जो चाहूंगा, ये आयत का शान नुज़ुल बता रहा हूं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए तो देखा सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान आपस में किसी बात पर हंस रहे हैं। बातें हो रही हैं और उन बातों में हंस रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हंसते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह की तरफ से तुम्हें अमान का परवाना मिल चुका है? अमान का परवाना मिल चुका कि तुम हंस रहे हो? मुराद ये है जिसके दिमाग के अंदर और जिसकी जिंदगी के अंदर अभी कब्र का मरहला बाकी है, हश्र का मरहला बाकी है, सवालात और जवाबात का मामला बाकी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में पेशी बाकी है, अल्लाह लम्हे लम्हे का हिसाब लेगा, वो दिन सब बाकी है। जिसके दिमाग के अंदर इतना टेंशन हो और जिसके सामने इतने मरहले हो, उन मरहलों से गुजरने से पहले बंदे तुझे हंसी कैसे आ गई, तू कहा कैसे लगा रहा है, तू मुस्कुरा कैसे हंस कैसे रहा है? अल्लाह अकबर। साहबा ने जब ये सुना तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे इन मुस्कुराने की वजह से ये आये करीमा नाजिल हुई है कि क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र के सामने? अल्लाह अकबर। अब साहबा का ज़मीर देखें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का मुसलमान गुनाह करके कहे लगाता है, गुनाह करने के बाद जो है वो फरहत और शादमानी के मुजाहिरे कर रहा है। आप जरा देखिए तो सही, क्या डांस करना नेकी का काम है? लेकिन डांस कर रहा है, कहे लगा रहा है, शराब पी रहा है, कहे लगा रहा है, आवारगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कहे लगा रहा है, जुर्म कर रहा है और कहे लगा रहा है। साहबा तो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, कोई जुर्म बड़ा नहीं था, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया तो लरस गए। सरकार ने फरमाया, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से तुम्हें अमान का परवाना मिल चुका है? साहबा लरस गए, या अल्लाह, अभी तो कब्र में जाना बाकी है, अभी मौत का मरहला बाकी है, अभी हिसाबो किताब बाकी है, हमें हंसी कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या इस हंसी का भी कोई कफारा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसका कफारा ये है, जितना तुम हंसे थे उससे ज्यादा अल्लाह के खौफ में रोने लग जाओ, अल्लाह के डर से रो, यही उसका कफारा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं, आपके ज़मीर को मैं आज झंझोड़ना चाहूंगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह की इस आयत की रोशनी में क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया? आप हालात देख लें, जमाने की सिचुएशन देख लें, दौरे हाजिर की कैफियत को देख लें। इन सारी चीजों को देखने के बाद क्या अभी भी हमारे लिए वो वक्त नहीं आया कि हमारा दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, उसके जिक्र के सामने झुक जाए? और अगर आज नहीं झुकाए तो जमाना हमें बता रहा है, हालात हमें बता रहे हैं, कैफियत हमें बता रही हैं कि अंजाम किस तरीके का होगा। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, अपने आप को चेंज करो, अल्लाह के जिक्र के सामने सरेंडर हो जाओ, अल्लाह के सामने दिल को झुका दो। अब आइए, इस आये करीमा के असरात सहाबा पर कैसे थे, इस आये करीमा के असरात औलियाए किराम पर कितने पड़े, ताकि आप महसूस कर सकें और इस आयत के असरात को अपनी जिंदगी के ऊपर आप नाफिज कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब मैं इस आये करीमा के अंदर ईमान और कल्ब को जब देखता हूं कि इसके अंदर फरमाया गया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। आप देखिए, ईमान, खशियत और कल्ब, ये तीन चीजों को इस आयत के अंदर आप देखें। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा अपने ईमान का तो जायजा लो, अपने ईमान का एहतसाब तो करो। हमारे पास कैसा ईमान है, हमारे पास कितना ईमान है? तो हमारा विजदान जवाब देगा। टिमटिमाते दिए की तरह हमारे सीने में इस वक्त ईमान मौजूद है। हमने ईमान को इतना हल्का समझ लिया कि बात बात पर हम ईमान की कसम खाते हुए नजर आते हैं, बात बात पर ईमान को गवाह बनाते नजर आते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी
ईमान को गवाह बनाते हैं। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। ईमान को हमने हल्का समझ लिया। ईमान हल्की चीज नहीं है, ईमान बहुत ताकतवर चीज है, ईमान बहुत बड़ा सरमाया है, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। और अगर आपको अपने वजूद के अंदर मौजूद ईमान को देखना है कि कितना ईमान मौजूद है, मैं 2 हदीसें आपके सामने पेश करता हूं और उसके बाद अपने ईमान का जायजा लेने की दावत देता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं जो वो अपने लिए पसंद करता है वैसा ही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद न करे। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करता है वो मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। आप जरा जायजा ले लें, आप जरा हालात को देख लें, आप अपनी जिंदगी का जायजा लें। अपने ही किसी भाई को अगर आप तरक्की के रास्ते पर देखते हैं, कामयाबी के रास्ते पर देखते हैं, तो दिल अंदर से कुड़ता है, दिल अंदर से जलता है। ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया, ये इतनी तरक्की कैसे हो गया। और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहालत की बुनियाद पर जादू टोने करवाते नजर आते हैं, तावीजात लेकर के ऐसे सिफली इल्म की तरफ तवज्जो देते हैं जिससे भाई का कारोबार ठप हो जाए, भाई का बच्चा तबाह हो जाए, न जाने क्या क्या किया जाता है। हुजूर तो फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करो। अब हमारा ईमान जरा हम देख लें। क्या आज मुसलमानों की ये कैफियत है कि किसी मुसलमान का अच्छा देखकर उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हो, ए अल्लाह इसे और अता फरमा दे? क्या वो खुश होता है, क्या वो राजी होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2 भाई रहते हैं, एक भाई के घर 3 बच्चियां हैं, एक भाई के घर 2 बेटे हैं। लेकिन आप जानते हैं जिसके घर 2 बेटे थे, अगर तीसरा भी बेटा हुआ तो भाई जिसके घर 2 बेटियां थी उसका चेहरा उतर जाता है। अल्लाह इसको ही बेटे क्यों देता है, मुझे ही बेटियां क्यों देता है? खुश नहीं हो रहा। ये बहुत सिंपल मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप महसूस कर सकें। अगर किसी भाई की बच्ची को अच्छा रिश्ता मिल गया और बहन बच्ची जो है अच्छी जगह पर चली गई तो दूसरा भाई कुड़ता है, मेरी बच्ची गरीब के यहां क्यों गई, मेरे भाई के बच्चे को इतनी अच्छी, मेरे भाई की बच्ची को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिला। हम मुसलमानों की खुशी में खुश नजर नहीं आते, हम मुसलमानों की खुशी से खुश नजर नहीं आते। हुआ क्या, जब हमारी कैफियत ये हो गई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसको तो नेमतें दे रहा है, लेकिन जलन की वजह से ईमान का दिया जो हमारे सीने के अंदर हम कहते हैं कि रोशन है, वो टिमटिमाते दिए की तरह हो जाता है। हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारा ईमान वीक हो गया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि हमारे ईमान की कैफियत क्या है। दूसरी चीज मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप अपने ईमान का जायजा ले सकें। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो कि बेशक ईमान वाले को नसीहत नफा पहुंचाती है। मैं पूछना चाहता हूं, जुम्मा में खिताबात हो रहे हैं, इज्तिमाआत में खिताबात हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, कितना मुसलमान बदल रहा है कि मुसलमान की जिंदगी में तब्दीली क्यों नजर नहीं आती? तो कुरान ने कहा नसीहत किसको नफा पहुंचाएगी? ईमान वाले को। पता चला हमारी जड़ कमजोर हो गई है, हमारा ईमान कमजोर हो गया है, जिसकी बुनियाद पर हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता, हमारे दिल पर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का असर नहीं होता। कुरान सुनते हैं, उलमा की खिताबात सुनते हैं, और सब कुछ सुनने के बाद भी हमारा दिल नर्म नहीं होता। कभी कभी बड़ी रातों में थोड़ा सा रो लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे थे वैसे ही बन जाते।